تمہیں معلوم ہے سلطانے کہ وہ زیورات کہاں تھے جو تم مجھ سے حاصل کرنا چاہتے تھے؟ شاہ جی بولا تمہارے پاس ہی تھے اور کہاں ہوتے؟ میں نے کہا نہیں سلطانے، جس روز میں رضیہ کے گھر آیا تھا اسی روز میں نے وہ زیورات رضیہ کے حوالے کیے تھے جو اس نے اپنی خفیہ الماری میں رکھ لیے اور مجھے تنخواہ دینا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کروڑوں کی اس دولت کو ہضم کر لے گی۔ اس نے تو یہ ساری باتیں تم سے بھی چھپائی تھی۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو رضیہ سے پوچھ لو۔ اب میں زیادہ دیر تمہاری بکواس نہیں سن سکتا، جلد ہی ملاقات ہوگی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا لیکن میں نے فون بند کر دیا اور مسکراتے ہوئے نرگس کی طرف دیکھا۔ نرگس بولی تو اسے پتہ چل گیا؟ میں نے کہا ہاں، وہ صبح 9 بجے شیخو پورا سے آ گئی تھی۔ اگر کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہو تو پہلے ہی سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے، یہ میرا تجربہ ہے۔ رضیہ کو بھی شاید رات بھر بے چینی رہی ہوگی۔ رات تو اس نے جیسے تیسے گزار لی اور صبح ہوتے ہی واپس آ گئی۔ کوٹھی میں پہنچتے ہی اس نے اپنی خفیہ الماری کھول کر دیکھی ہوگی اور ہنگامہ شروع کر دیا ہوگا۔ ویسے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس گھر میں ہماری ایک ہمدرد بھی موجود ہے۔ نرگس بولی کیا مطلب؟ اس گھر میں ہمارا کون ہمدرد ہو سکتا ہے؟ وہاں ہمارے خون کے پیاسے تو ہو سکتے ہیں، ہمدرد کوئی نہیں۔ میں نے کہا نوری، میری کال اس نے ریسیو کی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا بہت اچھا کیا۔ نرگس بولی اوہ، اس کا مطلب ہے کہ رضیہ نے اس کے ساتھ کسی وقت کوئی زیادتی کی ہوگی، اس لیے اس کی بربادی پر وہ خوش ہیں۔ میں نے کہا اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ رضیہ جس قماش کی عورت ہے وہ تم جان چکی ہو۔ منشیات کے اس بزنس میں خوبصورت عورت کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ جو کام کوئی اور نہیں کر سکتا وہ کام ایک عورت چٹکی بجاتے کر لیتی ہے۔ منشیات کے بزنس میں سرکاری اہلکاروں کو رشوت تو دینی پڑتی ہے۔ یہ رشوت نقدی کی صورت میں بھی ہوتی ہے اور دیگر قیمتی تحائف کی صورت میں بھی۔ نوری کی عمر 40 سے زیادہ نہیں اور اس کے حسین ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ ہو سکتا ہے رضیہ نے اس کے ساتھ بھی کوئی۔ نرگس بولی یقیناً یہی بات ہوگی، اس لیے وہ رضیہ کی بربادی پر خوش ہو رہی ہیں، لیکن تمہیں خوشی سے بغلیں بجانے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی چال ہو ہمیں پھنسانے کے لیے۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ انہیں پہلے سے یہ معلوم ہوتا کہ میں خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کروں گا۔ نرگس نے کہا یہ بات تو ہے، لیکن کسی پر بھروسہ کرنے کی بجائے ہمیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، کہا تمہارا مشورہ سر آنکھوں پر۔ اس وقت 2:30 بج رہے ہیں، پیٹ پوجا کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیا؟ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ نرگس نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، بولی میں نے تو کچھ پکایا ہی نہیں۔ میں نے کہا واہ بھائی، لگتا ہے تمہارے ساتھ رہ کر اکثر فاقے ہی کرنے پڑیں گے، اب مجھے ہی بازار سے کچھ لانا پڑے گا۔ نرگس تشویش بھرے لہجے میں بولی تم باہر جاؤ گے؟ میں نے کہا وہ سب حرامزادے رضیہ کی کوٹھی پر جمع ہیں، اس لیے فی الحال مجھے کہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں کوٹھی سے نکل کر گلیوں کے پچھلی طرف ایک مختصر سے بازار میں پہنچ گیا۔ یہ داتا دربار کا عقبی علاقہ تھا۔ میں نے ایک ہوٹل سے ایک وقت کا کھانا لیا، گوشت کی دکان سے بکرے کی 2 رانیں بنوا لی، کچھ سبزیاں وغیرہ خریدیں اور واپس آ گیا۔ اب 3-4 دن تک باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک میڈیکل سٹور سے میں نے اپنے چہرے پر لگانے کے لیے کریم بھی لے لی۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم رضیہ اور شاہ جی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ نرگس بولی کاش میں اس کی حالت دیکھ سکتی۔ ویسے یہ بات طے ہے کہ اگر کبھی تم اس کے ہاتھ لگ گئے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارے لیے بھی اس کے یہی ارادے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تمہارے ٹکڑے کر دے گی اور تمہاری بوٹیاں کتوں کو کھلا دے گی۔ نرگس بولی اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد مجھ پر سستی سی طاری ہونے لگی اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھیں فوراً ہی بند ہو گئیں۔ بیدار ہوا تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ لاؤنج کی طرف سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک تو نرگس کی آواز تھی اور دوسری آواز بھی نسوانی ہی تھی۔ کبھی کبھی بچے کی کلکاری بھی سنائی دے جاتی۔ میں نے اٹھ کر دروازے سے جھانکا تو وہ سامنے والی پڑوسن شبانہ تھی۔ اس کا شیرخوار بچہ نرگس کی گود میں تھا اور وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کلکاریاں بھر رہا تھا۔ میں باتھ روم میں چلا گیا اور جب نہا کر باہر نکلا تو شبانہ جا چکی تھی۔ نرگس اس وقت کچن میں تھی۔ میں باہر آ گیا اور برآمدے میں سے میز اور کرسیاں اٹھا کر کھلی جگہ پر رکھ لی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نرگس چائے لے کر آ گئی۔ میں نے نرگس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شبانہ کا اس طرح آنا جانا مجھے پسند نہیں۔ ہمیں تو دوسروں کی نظروں سے چھپ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ پڑوسنوں کی آمد و رفت ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ نرگس نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ شبانہ ایسی نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں کسی کو کچھ بتائے، وہ تو بیچاری بہت دکھی ہے۔ میں نے کہا اوہ، تو اس نے تمہیں اپنی کوئی دکھ بھری کہانی بھی سنا دی؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، دوسروں سے ہمدردی کہیں ہمیں نہ لے ڈوبے۔ نرگس بولی ایسا نہیں ہوگا، کوئی اور پڑوسن آئے گی تو میں اس کی اس طرح حوصلہ شکنی کروں گی کہ وہ دوبارہ آنے کی ہمت نہ کرے۔ لیکن شبانہ، میں نے کہا کوئی خاص بات؟ اس نے تمہیں ایسی کیا دکھ بھری کہانی سنا دی کہ تم اس قدر متاثر ہو گئی؟ نرگس بولی وہ واقعی بہت دکھی ہے۔ یہ لوگ وسن پورے میں رہتے تھے۔ اس کا شوہر امیر دن تانگا چلاتا تھا، روکھی سوکھی جیسی بھی ملتی تھی، صبر شکر کے ساتھ بڑی عزت کے دن گزار رہے تھے۔
फिर पता नहीं अमीर दीन कैसे बुरी सोसाइटी में पड़ गया। मैंने कहा तांगे वाले रिक्शे और टैक्सी ड्राइवर तो वैसे ही छटे हुए होते हैं। नरगिस बोली मेरी बात तो सुन लो, कोई जरूरी नहीं कि हर तांगे वाला रिक्शा या टैक्सी ड्राइवर बदमाश हो। शबाना बता रही थी कि अमीर दीन वाकई बहुत शरीफ आदमी था। जो कुछ भी कमाता था रात को उसकी झोली में लाकर डाल देता। उसे बीड़ी पीने के अलावा कोई नशा नहीं था। लेकिन फिर देखते ही देखते वो बदल गया। पहले वो 40-50 की दिहाड़ी कमाता था, उसमें अचानक ही 200-250 का इजाफा हो गया। उसने शबाना को भी नए कपड़े बना कर दिए, बेटे को भी, और खुद भी नए कपड़े पहनने लगा। वो रोजाना बीवी और बेटे के लिए तहाइफ लेकर आता। पहले महीने में 1-8 बार गोश्त पका करता था। फिर अमीर दीन रोजाना बकरे का गोश्त लेकर आने लगा। पहले वो सुबह मुंह अंधेरे तांगा लेकर जाता था, फिर 10 बजे के बाद घर से निकलता, 2-3 बजे वापस आ जाता, 5 बजे तक घर पर रहता और फिर चला जाता। उसकी वापसी 12 बजे के करीब होती। वो शाही मोहल्ले में तांगा चलाता था, जहां शौकीन लोग आते हैं। अमीर दीन ने तांगा भी नया बना लिया था और उसे खूब सजाया था। वो शबाना से कहा करता था कि उसके तांगे पर शौकीन लोग बैठते हैं और मुंह मांगा किराया देते हैं, इसलिए उसकी आमदनी भी ज्यादा हो रही है। शबाना खुश थी कि रब ने उसकी भी सुन ली और उनके दिन भी फिर गए। पहले वो अपनी किस्मत का रोना रोती थी कि माँ बाप ने उसे एक तांगे वाले के पल्लू से बांध दिया, मगर अब वो खुश थी। वही तांगे वाला अब उसे ऐश करवा रहा था। और फिर ये दिन भी अचानक ही रुखसत हो गए। उस रात किसी आदमी ने आकर बताया कि अमीर दीन को पुलिस ने हेरोइन फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार करवाया है। शबाना 8 जमात पड़ी हुई है, लेकिन उन दिनों उसे यह भी मालूम नहीं था कि हेरोइन क्या होती है। ये इत्तला मिलने के तकरीबन 1 घंटे के बाद पुलिस भी अमीर दीन को लेकर पहुंच गई। अमीर दीन की हथकड़ी लगी हुई थी। उस वक्त रात के 9 ही बजे थे। गली में लोग जमा हो गए। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक ट्रंक में कपड़ों के नीचे छुपी हुई एक थैली मिली, जिसमें सफेद पाउडर भरा हुआ था। उसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि अमीर दीन ने वो थैली कब वहां लाकर रखी। पुलिस वाले शबाना से भी पूछगिछ करते रहे। वो हर बात से लाइल्मी का इजहार करती रही। उसे जब बताया गया कि इस थैली में हेरोइन है तो उसे बड़ी हैरत हुई। वो अब तक फिल्म स्टार नीलो और फिरदौस वगैरह को ही हीरोइन समझती थी, लेकिन ये हीरोइन तो अनोखी चीज निकली। पुलिस 2 घंटों तक घर की तलाशी लेती रही, लेकिन उस एक थैली के सिवा कुछ नहीं मिला। उस थैली में भी आधा सेर के लगभग पाउडर था, जो पुलिस अपने साथ ले गई, और अमीर दीन को भी। शबाना को पुलिस ने कुछ नहीं कहा। पुलिस के जाने के बाद मोहल्ले के लोग उसके घर में आते रहे और उसे ताने देते रहे। उसने दरवाजा बंद कर लिया और बच्चे को सीने से लगाए रोती रही। कोई उससे हमदर्दी करने वाला नहीं था। मैं बड़े गौर से नरगिस की बात सुन रहा था। कहानी वाकई दिलचस्प थी, लेकिन मुझे उसमें किसी अनजाने खतरे की बहुत हल्की सी आंच भी महसूस होने लगी। नरगिस बोली, शबाना रात भर रोती रही। वो किसी अनजाने डर और खौफ से रात को सो भी नहीं सकी थी। और फिर सुबह मुंह अंधेरे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर वो उछल पड़ी। उसका ख्याल था कि अमीर दीन वापस आ गया है। उसने दौड़कर दरवाजा खोला, मगर सामने अमीर दीन की बजाय एक और शख्स को देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। गुलाम सरवर नाम का ये शख्स पिछले 6 महीनों के दौरान अमीर दीन के साथ 2 मरतबा उनके घर आ चुका था। अमीर दीन उसके साथ दूसरे कमरे में देर तक बैठा रहता। शबाना ने सरवर को अंदर बुला लिया। सरवर माँ बेटे के लिए खाने और नाश्ते का सामान भी लेकर आया था। शबाना बार बार उससे अमीर दीन के बारे में पूछती रही। वो बोला, परेशान न हो भाभी, अमीर दीन बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। ऐसे कामों में मामूली पकड़ धकड़ तो होती रहती है, 1-2 दिन में वो छूट कर आ जाएगा। मुझे मालूम था कि तुमने रात को कुछ नहीं खाया होगा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। पहले नाश्ता करो, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। कादिर को भी जगाकर उसे भी खिलाओ, वो भी रात को भूखा ही सोया होगा। शबाना रूहान सी आवाज में बोली, अमीर दीन ने पता नहीं कुछ खाया होगा या नहीं, वो किस हाल में होगा। कल जब पुलिस उसे यहाँ लाई थी तो उसकी हालत बहुत बुरी थी, पुलिस ने उसे मारा था। गुलाम सरवर ने कहा, इसमें गलती अमीर दीन की ही थी। अगर वो खामोशी से अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता तो पुलिस उस पर हाथ न उठाती। तुम जानती हो, पुलिस वाले अपने आप को शहंशाह समझते हैं। अमीर दीन का एक पुलिस वाले पर हाथ उठाना ही गजब हो गया था। खैर, अब परेशानी की कोई बात नहीं, पुलिस वाले उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे और तुम उसकी फिक्र मत करो। मेरा एक बंदा उसके लिए भी नाश्ता लेकर गया है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि वो अब तक खाना खा भी चुका होगा। लो तुम भी खाना शुरू करो, ठंडा हो जाएगा। अपना एक हमदर्द पाकर शबाना की ढारस बंधी। उसने अपने बेटे कादिर को जगा दिया और उसका मुंह धुलाकर उसे नाश्ता करवाने लगी और खुद भी खाने लगी। शबाना के पूछने पर गुलाम सरवर ने बताया कि वो अमीर दीन का पुराना दोस्त है और वो 1-2 दिन में अमीर दीन को पुलिस से छुड़ाकर घर ले आएगा। उसने शबाना को तसल्ली दी और खर्च वगैरह के लिए 2000 रुपए भी दिए, मगर दिन पर दिन गुजरते चले गए। अमीर दीन घर नहीं आया। गुलाम सरवर वक्तन फवक्तन शबाना को उसके बारे में तसल्लियां देता रहा। अमीर दीन का केस अदालत में पहुंच गया। एक रोज गुलाम सरवर उसे अमीर दीन से मिलाने के लिए अदालत भी ले गया। अगले हफ्ते अमीर दीन को पुलिस कांस्टेबल पर हाथ उठाने
और हेरोइन फरोशी के जुर्म में 3 साल की कैद हुई और उसे जेल भेज दिया गया। शबाना का मेका नारोवाल में था। यहाँ उसके मेके का कोई रिश्तेदार भी नहीं था। ससुराली रिश्तेदारों ने तो उस रोज मुंह मोड़ लिया था जब अमीर दीन पकड़ा गया था। शबाना ने गुलाम सरवर के मशवरे पर नारोवाल में अपने घर वालों को भी इत्तला नहीं दी। अमीर दीन के जेल हो जाने के बाद शबाना नारोवाल जाना चाहती थी। गुलाम सरवर ने कहा, वहां जाकर क्या करोगी? तुम्हारे माँ बाप भी परेशान होंगे, खानदान वालों को पता चलेगा तो रुसवाई अलग होगी। यहीं आराम से बैठी रहो, 3 साल पलक झपकने में गुजर जाएंगे। वो बोली, लेकिन मैं यहाँ क्या करूंगी? खर्च कहाँ से होगा? कौन देगा मुझे? मकान का 2 महीने का किराया चढ़ गया है। आज वो कहकर गया है कि अगर अगले महीने किराया न दिया तो वो मकान खाली करवा देगा। गुलाम सरवर ने कहा, उसकी तुम फिक्र मत करो, अमीर दीन मेरा दोस्त है, वो मेरे लिए काम करता था। मैं उसके घर वालों को बेआसरा तो नहीं छोड़ सकता था। जब तक अमीर दीन रिहा नहीं हो जाता तुम्हारे तमाम अखराजात मेरे जिम्मे हैं। उस रोज गुलाम सरवर उसे 5000 रुपए दे गया। शबाना ने उस रकम में से मकान का 2 महीने का किराया भी अदा कर दिया। गुलाम सरवर की आमदोरफ्त जारी रही। 6 महीने गुजर गए। इस दौरान वो गैर महसूस अंदाज में एक दूसरे के करीब आ गए। उसने पहले ही रोज से कहा था कि वो उसे अमीर दीन की कमी महसूस नहीं होने देगा, और ऐसा ही हुआ। शबाना के पेट में गुनाह पलने लगा। मोहल्ले वाले उस पर निगाह रखे हुए थे। वो दबे लफ्जों में उसके गुलाम सरवर की आमदोरफ्त पर एतराज करते रहे, लेकिन खुलकर कभी किसी ने जबान नहीं खोली। गुलाम सरवर कद्दो-कामत और शक्ल सूरत से ही बदमाश लगता था। लोग उससे डरते भी थे, लेकिन जब शबाना का गुनाह नुमायां होने लगा तो मोहल्ले वाले भी खुल गए। उन्होंने धमकी दी कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये मकान नहीं छोड़ा तो वो पुलिस के जरिए उसे निकलवा देंगे। और फिर उन्होंने मालिक मकान पर भी दबाव डाला, जिसके नतीजे में उसे मकान खाली करना पड़ा। गुलाम सरवर उसे मिस्री शाह की एक खोली नुमा मकान में ले आया। शबाना चंद महीने वहीं रही। वहीं पर उसकी बेटी पैदा हुई। वहां भी मोहल्ले वालों को पता चल गया कि वो मियाँ बीवी नहीं। गुलाम सरवर उसे यहाँ सामने वाले मकान में ले आया। यहाँ शबाना ने मोहल्ले वालों से ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखे। साथ वाली पड़ोसन के पूछने पर उसने बताया कि उसका शौहर दुबई गया हुआ है। गुलाम सरवर उसका एक करीबी रिश्तेदार है जो उसका ख्याल रखता है। वैसे गुलाम सरवर ने यहाँ आना जाना कम कर दिया है और पिछले 2 महीनों से तो वो बिल्कुल ही गायब है। जब शबाना की बच्ची होने वाली थी तो नारोवाल में उसके घर वालों को भी पता चल गया कि अमीर दीन 1 साल से जेल में है। उन्हें ये भी पता चल गया कि वो एक नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है। उन्होंने किसी तरह शबाना तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि वो नारोवाल ना आए। ये बेचारी फरेब का शिकार हुई। हमदर्दी की आड़ में इसे लूटा गया। इसने अगरचे लोगों से कह रखा है कि इसका शौहर दुबई चला गया है, लेकिन वो परेशान है। अमीर दीन जब जेल से रिहा होगा तो वो उसका सामना कैसे करेगी? सबसे बड़ी परेशानी अखराजात की है। ये गनीमत है कि गुलाम सरवर ने ये मकान लेते वक्त 6 महीने का किराया एडवांस दे दिया था, लेकिन उसमें से 4 महीने निकल गए। अगर ये किराया न दे सकी तो इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया जाएगा। इससे बड़ी परेशानी रोजमर्रा के अखराजात की है। वो खुद तो भूखी रह सकती है, लेकिन बच्चे। नरगिस ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। बोली, तुम औरत को नहीं समझ सकते। हमदर्दी के 2 बोल सुनकर वो मोम की तरह पिघल जाती है, और ये हमदर्दी दरअसल उसकी बर्बादी का बायस बनती है। दूसरी तरफ औरत फौलाद से ज्यादा सख्त और मजबूत है। दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत उसे झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन इन बातों का इन्हिसार उन हालात पर है जिनसे वो 2-4 हुई। मैंने कहा, तो तुम क्या चाहती हो? नरगिस बोली, उसकी कुछ मदद कर दी जाए। मैंने कहा, किस तरह? नरगिस बोली, उसे काम के लिए अपने पास रख लिया जाए। शबाना ने खुद ही तो कहा था कि उसे सहारा मिल जाएगा, जिंदगी भर दुआएं देती रहेगी। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, नरगिस बेगम, तुम्हें मालूम है हम किस किस्म के हालात से 2-4 हैं। एक तरफ पुलिस हमारी तलाश में है तो दूसरी तरफ रजिया और शाजी के आदमी कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघते फिर रहे हैं। और इत्तेफाक से शबाना की बदनीयत हमदर्द गुलाम सरवर का ताल्लुक भी ड्रग माफिया से है। वो अगर 1.5-2 महीने से यहाँ नहीं आया तो कोई बात नहीं। मैं ऐसे लोगों को खूब अच्छी तरह जानता हूँ। सरवर जैसे लोग आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ सकते। वो जरूर यहाँ आएगा। यहाँ उसकी आमदरफ्त होगी तो गली में किसी वक्त मेरा और उसका आमना सामना भी हो सकता है। और जरूरी नहीं कि उसका ताल्लुक शाजी के ग्रुप से हो, लेकिन वो वाबस्ता तो इसी बिजनेस से है। सब लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो बात पूरे लाहौर में फैल जाएगी कि मैं कहाँ हूँ। क्या ये सूरत हाल हमारे लिए खतरनाक नहीं होगी? नरगिस ने कहा, सरवर अब यहाँ नहीं आएगा। हो सकता है उसे कोई और मिल गई हो और उसने शबाना को छोड़ दिया हो। लेकिन बहरहाल इस गरीब की मदद करने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और वैसे जरूरी नहीं कि सरवर तुम्हें जानता ही हो। तुम कई साल के बाद यहाँ आए हो, तुम्हारा हुलिया भी बदला हुआ है। जरूरी नहीं कि वो तुम्हें देखते ही पहचान ले। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक बात उसे अच्छी तरह समझा देना, हमारे घर की कोई बात बाहर नहीं जानी चाहिए। नरगिस के चेहरे पर रौनक सी आ गई। बोली, मैं उसे समझा दूंगी।
उसकी वजह से हमें भी बहुत आराम मिल जाएगा। मेरा मतलब है सौदा वगैरह लाने के लिए हम में से किसी को बाजार नहीं जाना पड़ेगा। मैंने कहा लेकिन हम इस तरह घर में बंद होकर भी तो नहीं रह सकते, हमें कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। हम देर तक बातें करते रहे। फिर मुझे नामों की उस फहरिस्त का ख्याल आ गया। मैं उठकर अंदर आ गया और वो कागज लेकर टेलीफोन के करीब बैठ गया। मैंने फोन का रिसीवर उठाया और सबसे पहले जीरे ब्लेड का नंबर मिलाया। कॉल रिसीव होने में ज्यादा देर नहीं लगी। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज में हेलो कहा गया तो कई साल बाद भी मैंने उस आवाज को पहचान लिया। मैंने पूछा, हेलो जीरे ब्लेड, कैसे हो? दूसरी तरफ से पूछा गया, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं बूटा बोल रहा हूँ, शाहजी का बंदा। शाहजी का तुम्हारे लिए एक पैगाम है, तुम कल शाम 8 बजे। जीरे ने गुर्राते हुए मेरी बात काटी। बोला, बंद कर ये बकवास। मैं शाहजी को बता चुका हूँ कि अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मैं ऐसे सारे धंधे छोड़ चुका हूँ। मैंने कहा, इस धंधे में आने के बाद कोई भी शख्स अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सुनहरा जाल है जिससे निकलने को किसी का दिल ही नहीं करता और तुम। उसने एक बार फिर मेरी बात काट दी। बोला, मैंने कहा ना, मैं सारे धंधे छोड़ चुका हूँ। अब कोई लालच या धमकी मुझे दोबारा इस धंधे पर आने पर आमादा नहीं कर सकती। मैंने कहा, सोच लो जीरे ब्लेड, इस मर्तबा शाहजी की तरफ से बहुत बड़ी ऑफर है। एक रात में कम से कम 10 लाख कमाने का चांस है। जीरा बोला, 10 लाख तो क्या 10 करोड़ भी हो तो मेरा जवाब इनकार में होगा। और शाहजी से कहना कि आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश न करे, वरना मैं उसके सारे राज खोल दूंगा। उसके रंगों की एक खेप पकड़ी गई तो वो तबाह हो जाएगा और कोई उसे बचाने भी नहीं आएगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता लाइन कट गई। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने फोन रख दिया। ये वही जीरा ब्लेड था जिसकी मुझे तलाश थी। पहले वो मेरे ग्रुप में था। मेरे लाहौर से जाने के बाद वो शाहजी के ग्रुप में शामिल हो गया। अब उसकी बातों से अंदाजा होता था कि वो इस घिनौने कारोबार से किनारा कश हो चुका है और अब वो किसी भी कीमत पर शाहजी के लिए काम करने को तैयार नहीं था। उसने रंगों की खेप पकड़वाने की धमकी भी दी थी और इस धमकी पर मैं चौंके बगैर न रह सका। ये बात तो मुझे रजिया ने भी बताई थी कि रंगों की आड़ में बड़ी मिकदार में हेरोइन जनूबी अफ्रीका को स्मगल की जाती थी और अब जीरे ब्लेड ने भी वही बात दोहराई थी। मैंने फोन का रिसीवर उठा लिया और दोबारा जीरे ब्लेड का नंबर मिलाया। ये शख्स मेरे काम आ सकता था। इस मर्तबा भी कॉल फौरन ही रिसीव कर ली गई। मैंने कहा, मैं तो समझा था कि 10 लाख की बात सुनकर तुम सब कुछ भूल जाओगे, मगर तुम तो इरादे के पक्के निकले। जीरा बोला, बंद कर बकवास और आइंदा मुझे फोन मत। मैंने जल्दी से कहा, फोन बंद मत करना जीरे, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं तो तुम्हारा एक पुराना दोस्त हूँ, बहुत पुराना। मेरा नाम सुनोगे तो तुम्हें हैरत होगी। जीरे ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, कौन हो तुम? मैंने कहा, तुम्हारा पुराना दोस्त नाजी बाऊ। शायद ये नाम तुम्हारे जहन में महफूज हो। जीरे ने नाम दोहराया। बोला, नाजी बाऊ? फिर उसकी चौंकती हुई आवाज आई, तुम वाकई नाजी बाऊ हो? मैंने कहा, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही बूटे के नाम से फोन किया था और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम इस गंदगी से निकल चुके हो। उसने गहरा सांस लिया। बोला, हाँ नाजी बाऊ। शाहजी और उसके आदमी वक्तन फवक्तन मुझे दोबारा इस दलदल में खींचने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मैंने उसकी बात काटी। कहा, तुम तो वाकई इरादे के पक्के हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ जीरे। जीरे की आवाज आई, नाजी बाऊ, एक पुराने दोस्त की हैसियत से मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी, लेकिन अगर तुम भी इस सिलसिले में। मैंने उसकी बात काटी। कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं भी ये धंधे छोड़ चुका हूँ, एक पुराना दोस्त समझकर मिलना चाहता हूँ। जीरे ने कहा, तो फिर ऐसा करो, कल रात 9 बजे समनाबाद में मूनलाइट रेस्टोरेंट में आ जाओ, हम वहाँ आराम से बैठकर बातें कर सकेंगे। कुछ देर और बातें होती रहीं, फिर मैंने फोन बंद कर दिया। मैं कुछ देर जीरे की बातों पर गौर करता रहा, फिर फोन का रिसीवर उठाकर दूसरे नंबरों पर ट्राई करने लगा। पहले मैंने शबनम का नंबर मिलाया। कॉल किसी आदमी ने रिसीव की थी जिसने बताया कि शबनम रावलपिंडी गई हुई है, उसकी वापसी 3-4 दिन के बाद होगी। मैंने क्रेडल टैप करके जुबैर का नंबर मिलाया। यहाँ देर तक घंटी बजती रही लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। थोड़े थोड़े वक्फे से 2-3 मरतबा कोशिश करने के बाद भी नाकामी हुई। मेरा ख्याल है कि ये नंबर या तो कट चुका था या कोई घर पर मौजूद नहीं था। मैंने मजीद कोशिश तर्क कर दी और सोफे से उठकर किचन में आ गया जहाँ नरगिस खाना पका रही थी। नरगिस ने कहा, आज तो तुम मेरे हाथ का पका हुआ खाओगे और कल से खाना वगैरह शबाना पकाएगी। मैंने उसे रखने का फैसला कर लिया है। मैंने कहा, एक बात का ख्याल रखना, हर शख्स शरीफ होने का दावा करता है, हमें नहीं मालूम शबाना कैसी औरत है, उसके सामने कभी अलमारी मत खोलना और अलमारी को हर वक्त ताला लगा कर रखना। नरगिस बोली, इत्मीनान रखो, मैंने शबाना की बातों से अंदाजा लगा लिया है कि वो ऐसी औरत नहीं है।